કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રી નીતિન ગડકરીએ ગુજરાતના ભરૂચમાં દિલ્હી, હરિયાણા, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને ગુજરાત રાજ્યોમાંથી પસાર થતા દિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસ વેની પ્રગતિની સમીક્ષા કરી હતી। આ દરમિયાન તેમણે સ્થળનું પણ નિરીક્ષણ કર્યું, જ્યાં ફેબ્રુઆરી 2021માં એક દિવસમાં સૌથી ઝડપી માર્ગ નિર્માણનો વિશ્વ વિક્રમ રચાયો હતો। કેન્દ્રીય માર્ગ પરિવહન અને રાજમાર્ગ મંત્રી નીતિન ગડકરીએ ગુજરાતના ભરૂચમાં દિલ્હી, હરિયાણા, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ અને ગુજરાત રાજ્યોમાંથી પસાર થતા દિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસવેની પ્રગતિની સમીક્ષા કરી હતી। આ દરમિયાન તેમણે તે સ્થળનું પણ નિરીક્ષણ કર્યું, જ્યાં ફેબ્રુઆરી 2021માં એક દિવસમાં સૌથી ઝડપી માર્ગ નિર્માણનો વિશ્વ વિક્રમ રચાયો હતો। મંત્રી નીતિન ગડકરીએ સમીક્ષા બેઠક બાદ એક પત્રકાર પરિષદને સંબોધતા જણાવ્યું હતું કે 98,000 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થતો આ 1380 કિલોમીટર લાંબો દિલ્હી મુંબઈ એક્સપ્રેસવે ભારતનો સૌથી લાંબો એક્સપ્રેસવે હશે। તેનાથી રાષ્ટ્રીય રાજધાની દિલ્હી અને આર્થિક રાજધાની મુંબઈ વચ્ચે જોડાણ વધશે। દિલ્હી મુંબઈ મહાનગરો વચ્ચે મુસાફરીનો સમય 24 કલાકથી ઘટીને 13 કલાક થઈ જશે। આ ઉપરાંત દિલ્હી, હરિયાણા, રાજસ્થાન, મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત અને મહારાષ્ટ્રના 6 રાજ્યોમાંથી પસાર થતા આ એક્સપ્રેસવેમાં જયપુર, કિશનગઢ, અજમેર, કોટા, ચિત્તોડગઢ, ઉદયપુર, ભોપાલ, ઉજ્જૈન, ઇન્દોર, અમદાવાદ, વડોદરા, સુરત જેવા આર્થિક કેન્દ્રો સાથે જોડાણ સુધારવાની સાથે લાખો લોકો માટે આર્થિક સમૃદ્ધિ લાવશે। તેમણે વધુ માહિતી આપતા જણાવ્યું હતું કે સમગ્ર એક્સપ્રેસવેનો વડોદરા અંકલેશ્વરનો 100 કિલોમીટરનો વિભાગ બાંધકામના અદ્યતન તબક્કામાં છે અને માર્ચ 2022 સુધીમાં વાહન વ્યવહાર માટે ખુલ્લો કરવાનો લક્ષ્યાંક છે અને માર્ચ 2023 સુધીમાં અંકલેશ્વરથી તલસારી સુધીનો બાકીનો વિભાગ પૂર્ણ કરવાનો લક્ષ્યાંક છે। 2 કિલોમીટર લાંબો એક્સ્ટ્રાડોઝ કેબલ સ્પાન બ્રિજ, ભરૂચ નજીક નર્મદા નદી પર એક આઇકોનિક બ્રિજ, એક્સપ્રેસવે પર બાંધવામાં આવતો ભારતનો પ્રથમ 8 લેન પુલ હશે। આનાથી ભરૂચ શહેર નજીક આઇકોનિક ઇન્ટરચેન્જ સાથે દેશમાં એક્સપ્રેસવે વિકાસની ઓળખને નવી ગતિ મળશે। તેઓએ જણાવ્યું હતું કે દેશમાં ટેકનોલોજી ડેવલપ કરીએ તો સારું કામ મળશે। સારું કામ કરનારને પ્રોત્સાહિત કરવા જોઈએ અને ભૂલ કરનારને માફ ન કરવા જોઈએ। ગુજરાતમાં અનેક યોજનાઓ આકાર લઈ રહી હોવાનું કહી તે અંગે માહિતી પણ આપી હતી। મારું મંત્રાલય કોઈ સમાધાન નથી કરતું। સસ્તા ભાવે સારું કાર્ય થાય તો દેશની જનતાને ફાયદો થાય। તેઓએ એમ પણ જણાવ્યું હતું કે એક હાઈવે નિર્માણમાં મારા ફાધર ઇન લોનું મકાન વચ્ચે આવતું હતું। અધિકારીને મેં આદેશ આપ્યા કે હટાવી દો। કેન્દ્રીય મંત્રી નીતિન ગડકરી સાથે ભરૂચ સાંસદ મનસુખ વસાવા, વાગરાના ધારાસભ્ય અરુણસિંહ રાણા, ભરૂચ જિલ્લા ભાજપ પ્રમુખ મારુતિસિંહ અટોદરિયા અને નેશનલ હાઈવે ઓથોરિટી ઓફ ઇન્ડિયાના અધિકારીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। જો કે ગડકરીએ તેમના વિભાગ સિવાય અન્ય કોઈપણ બાબતે ઉત્તર કે નિવેદન આપવાથી દૂર રહ્યા હતા। तो बीच बीच में भी जो महत्वपूर्ण शहर है जिसमें इसका काफी फायदा होगा। कल मैंने शुरुआत की दिल्ली से, कुछ हरियाणा का पार्ट था और सवाई माधोपुर जो एरिया है विशेष रूप से इसमें काफी ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट आते हैं और एक प्रकार से इस ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट जो है वो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है। 115 एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट में अभी आते हैं। तो ये हाईवे विकास का पथ जो है उस क्षेत्र में विकास की गंगा लेकर आएगा और वहाँ की गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी दूर करके समृद्धता और संपन्नता लाएगा, ये मेरा विश्वास है। मैं अक्सर जॉन केनेडी के वाक्य को हर समय उद्धृत करता हूँ। उन्होंने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। अमेरिका धनवान है, इसके कारण अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए ऐसा नहीं है। तो अमेरिका के रास्ते अच्छे हुए, इसके कारण अमेरिका धनवान हुई। ये जॉन केनेडी जी ने बताई हुई जो फिलॉसफी है वही हमारे देश में रोड के लिए महत्वपूर्ण है और इसीलिए हम लोग बड़े बड़े एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं और जिससे निश्चित रूप से समृद्धता और संपन्नता आएगी और इस क्षेत्र में
इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स, लॉजिस्टिक पार्क, स्मार्ट सिटीज, इन सब का निर्माण होगा। ये जो गुजरात में इसका हिस्सा है, इसके ऊपर 423 किलोमीटर 8 लेन एक्सप्रेसवे गुजरात में बना रहे हैं। इसके ऊपर टोटल 36,000 करोड़ रुपए हम खर्चा कर रहे हैं और 132 किलोमीटर का जो निर्माण कार्य शुरू हुआ है उसमें 40% काम अभी तक पूरा हुआ है। ये एक्सप्रेसवे दाहोद, लीमखेड़ा, पंचमहाल, वडोदरा, भरूच, सूरत एवं वलसाड़ से गुजरेगा और इसमें जो काफी ओवरब्रिज है, 17 इंटरचेंज है, ये सब इंटरनेशनल बेंचमार्क के हिसाब से बनाई गई है। 17 फ्लाईओवर्स है, 8 आरओबी का निर्माण है और इसमें आपने अभी देखा इसमें बहुत सी विशेषता है। जैसे मैं सवाई माधोपुर में कल था तो वहाँ हमने एनिमल के लिए इस प्रकार का अंडरपास बनाया है कि हम अंदर, हमारा रोड नीचे जाएगा और ऊपर में टेकड़ी होगी और फॉरेस्ट में जानवर घूमते रहेंगे। विशेष रूप से अनेक प्रकार के 1300 करोड़ रुपए हम उसके ऊपर खर्चा कर रहे हैं केवल वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। अभी आपने देखा यहाँ जो ब्रिज का निर्माण हो रहा है, इसमें स्पेशल टेक्नोलॉजी का उपयोग करके नर्मदा के ऊपर केबल स्पीड ब्रिज बन रहा है और जिसको 4-5 साल लगते हैं, वही ब्रिज हम लोग काफी कम समय में पूरा हो रहा है और इसलिए ये 33 महीने में ब्रिज पूरा कर रहे हैं हम लोग। तो मुझे लगता है कि ये निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है कि जिसमें हम एक अच्छा रिकॉर्ड बना रहे हैं। और क्वालिटी के बारे में भी, कल मैं मध्य प्रदेश में था तो मैंने ट्रायल के रूप में 160 किलोमीटर के स्पीड से गाड़ी को दौड़ने के बाद मैंने चेक किया कि क्वालिटी कैसी है और निश्चित रूप से बहुत अच्छी क्वालिटी। आज भी मैंने जो जहाँ से वहाँ पटेल इंजीनियरिंग में जो काम किया वहाँ से मैं गाड़ी में बैठकर फिर भी मैंने टेस्ट किया 120-140 किलोमीटर, ताकि मुझे याद है जब मैंने मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे बनाया था तो मैं उस समय उसके टेस्टिंग के लिए 120 किलोमीटर के स्पीड से मैंने चाय पिया था थर्मोस से निकाल कर और मैंने कहा था कि अगर ये मेरा चाय गिर जाएगा तो मैं कॉन्ट्रैक्टर को बोला था कि आपको छोड़ूंगा। तो आज क्वालिटी के बारे में भी काफ़ी ठीक काम हुआ है और निश्चित रूप से ये देश के लिए एक अभिमान का विषय है। पांड्रा, सनपा, मनूबर तक 125 किलोमीटर का कार्य दिसंबर 2021 तक पूरा हो जाएगा। वडोदरा से अंकलेश्वर तक 100 मार्ग का किलोमीटर का निर्माण कार्य 2022 तक पूरा हो जाएगा। अभी एमपी साहब ने मुझे मांग बताई है कि अंकलेश्वर से बरहानपुर होकर हमारे जलगांव तक जो रोड जाता है उसकी हालत बहुत खराब है और मैं उनको आश्वस्त करूंगा कि 6 महीने के अंदर इसको बहुत अच्छे रोड के तरीके में बनाने का काम हम करेंगे। उसको भी मैंने मंजूरी दी है और उसके तरफ मेरा ध्यान है क्योंकि वो रास्ता अच्छा नहीं है। अंकलेश्वर से तलासरी तक के मार्ग का निर्माण कार्य 2023 तक पूरा हो जाएगा। एक्सप्रेस में वे साइड 33 वे साइड सुविधाएं हैं। इसमें एलएनजी, सीएनजी, पेट्रोल, डीजल, इथेनॉल, इलेक्ट्रिक चार्जिंग उसकी तो व्यवस्था रहेगी। हेलीपोर्ट भी होगा और अभी प्रधानमंत्री जी ने हमारे ड्रोन की पॉलिसी भी लिबरल इसमें तैयार की है, तो ड्रोन उतरकर सामान और पैसेंजर के लिए उसकी भी व्यवस्था होगी। विशेष रूप से रोड में जब एक्सीडेंट होते हैं तो जिसका एक्सीडेंट होता है उसको तुरंत अस्पताल में ले जाने के लिए हेलीकॉप्टर, एम्बुलेंस का उपयोग होगा और उसके साथ साथ अगर पेशेंट बहुत ही सीरियस है और अगर उसकी जिंदा रहने की संभावना कम है तो उसको हॉस्पिटल में जाकर उसके, आजकल हमने ड्राइविंग लाइसेंस में ये प्रोविजन की है कि उसमें वही अपने डिक्लेरेशन